On behalf of Vidyadhara International Business School, I warmly welcome you all for today's session, The Art of Advocacy, Elevating Communication Skills for Legal Success. Vidyadhara International Business School, established in 2004 under the aegis of Rohini Educational Society, stands as a premier institute committed to excellence in education. From its humble beginnings in 1983, the society has grown into a trusted name in the field of learning and nurturing talent across disciplines. Affiliated with Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi, and approved by AICTE and Bar Council of India, GIBS is proud to offer programs like MBA, BBA, BA LLB, BBA LLB, and LLM. We are a NAAC accredited institution, graded A by NAAC in its third cycle, A plus by the State Fee Regulatory Committee, and consistently rated A by the Joint Inspection Committee of the Government of NCT of Delhi and GGSIP University since 2013. At GIBS, education goes beyond books. It's about shaping leaders, professionals, and change makers. Our mission is to prepare students not only for a successful career but also to empower them to make a meaningful impact on society. With that thought in mind, it gives me immense pleasure to introduce our esteemed resource person for today, Advocate Sanat Saluja. Mr. Saluja is a distinguished legal professional specializing in intellectual property rights, child protection law, and commercial arbitration. He is currently associated with the Network for Access to Justice and Multidisciplinary Outreach Foundation, a think tank dedicated to strengthening justice delivery and multidisciplinary support systems. His journey includes serving at National Commission for Protection of Child Rights, where he led compliance and redressal on child right violations, and at GAIL, where he contributed significantly in arbitration, contract vetting, and regulatory compliance. An LLM in IPR law is affiliated with the international forums such as FICL, Young ICCA, WIPO ADR Young, and ISDS. He is also the author of Emerging Trends in International Law and regular mentor and speaker on the issues of child rights, dispute resolution, and intellectual property rights. We are truly honored to have him with us today. Now I request Nishtha ma'am to kindly present a green sapling as a token of our warm welcome to Mr. Sanat Saluja. Thank you, ma'am. Now, with further ado, I invite Mr. Sanat Saluja to take over the session and enlighten us on the art of advocacy, elevating communication skills for legal success. Good morning, everyone. My name is Advocate Sanat Saluja. I am BA LLB, LLM, IPR specialist along with child rights activist and working in field of human rights as well as with a think tank. I have previously worked with National Commission for Protection of Child Rights and currently I am working on few aspects with regard to human rights, think tank, policy makers and grievance redressal mechanism. आप में से कई लोग शायद मेरे को पहले जानते होंगे, कई नहीं भी जानते होंगे शायद, but yes, I am a pass out from this institute only, 2022 batch. I am an alumni of the first BA LLB batch of this institute. The journey was incredible. Obviously, I had a lot of exposure from this place only, from this stage only. But आज जो हम डिस्कस करेंगे
वो कुछ चीजें होंगी मेरे एक्सपीरियंस से, कुछ आपका एक्सपीरियंस होगा। आई एम नॉट मच इनटू टेक्निकलिटीज, concepts. I'm into practical and my experiences along with your experiences. Definitely this will help us to understand how advocacy can be a better option than any other option if we have a good communication skill among us. This is not about how we learn, this is all about we execute. मैं बहुत लंबी बात में नहीं जाऊंगा, I will keep this session in a short and a crisp manner. But the only thing जो मैं आज यहाँ पे कन्वे करने आया हूँ वो ये कि जब हम 7 सेमेस्टर आए थे हमारे साथ अभी, और कोई I think 4th year, right? तो जब हम 4th year में हैं तो हम I think so 80% of टेक्निकलिटीज समझ चुके हैं लॉ स्कूल की, बाहर क्या फील्ड में डिमांड है उसकी। बट जो चीज अब आने वाली है जो अभी हमसे शायद छूट रही है, दैट इज कि हम अब इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। आई थिंक मैं नीचे आता तो बेटर रहेगा। हम कैसे सामने वाले को कन्विंस करते हैं कि हाँ हम ज्यादा नॉलेजेबल हैं या हमारी बात में ज्यादा वेट। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैंने ये चीज को समझा है कि आप अगर जितना चुप रहेंगे उतना आप लॉस्ट हो, क्योंकि सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है। 4th ईयर तक आते आते वी हैव टू डेवलप 2 स्किल्स। फर्स्ट, एक स्टेज फियर हमें हटाना है अपने में से। सेकंड, एक क्लैरिटी मेंटेन करनी है। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द लॉ, इट इज ऑलवेज अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर फैक्ट्स, हाउ यू डील विद द सिचुएशन। आप टाइम बाय कैसे करते हो। जब अभी कितने लोग इंटर्नशिप्स कर रहे हैं और कर चुके हैं? मोर देन 5 मेजॉरिटी। तो इस टाइम पे देखा होगा कि आप लोग जब भी इंटर्नशिप कर रहे हो कितने लोग आगे प्रेजेंट हुए और शॉर्ट ब्रेक हो। ज़्यादा से कितनी देर आपने बोला? 2 मिनट। आपने 2 मिनट। पर ये 20 मिनट में सब कन्वर्ट हो जाएगा जब आप यहाँ से अपना बार का रजिस्ट्रेशन अटेंड कर लो। इस 2 से 20 मिनट की जर्नी कहाँ पे आएगी, कैसे और क्यों? पहली बात तो ये है कि आपको कोई अपना एज एन एसोसिएट या अपना पार्टनर या आपका इंडिपेंडेंट फ्रीलांस वर्किंग क्यों ना, आप तब स्टार्ट कर सकते हो जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? इफ यू आर रेगुलर विद योर थिंग्स। जैसे पहला, एक तो फैक्ट चेक होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर वेल अपडेटेड विद द फैक्ट्स कि आजकल आसपास क्या चल रहा है, आप लीगली साउंड हो, आप बोलो और गलत बोलो और सामने वाले को पता हो, तो आप एक माइनस पॉइंट। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। सेकंड, एक्सपोजर। आप किस क्वालिटी सेट के अंदर बैठते हो, दिस इज एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। आप कहाँ जा रहे हो, किन से मिल रहे हो, किन डिस्कशंस में पार्ट ले रहे हो, आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हो, ये मैटर करेगा। फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स ये हर एक का टारगेट होना चाहिए कि अगर सुबह कॉलेज है तो शाम को आप लोग कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करो ही करो। मैंने अपने 2nd ईयर ऑनवर्ड से इवनिंग इंटर्नशिप्स करी थी एंड टिल डेट आई एम वर्किंग। मैं कभी शाम को खाली नहीं बैठा। तो पुरानी फैकल्टीज है, मैनेजमेंट है, सर खड़े सर जानते हैं। मैं सुबह आता था तो रात को 10 बजे भी यहीं आसपास ही कहीं ना कहीं दिखता था। अगर कोई पुराना मुझे यहाँ पे जानता है शायद तो मे भी उसने देखा था। बट द ओनली रीजन इज कि आपको प्लेसमेंट में थोड़ा सा ईज हो जाए। वी हैव टू फॉलो कॉम्प्लेक्सिटी इशू को कैसे हम इजी वे के अंदर उसको फेयर वे के अंदर अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी, जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं सबसे पहले हमें इशू को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एडवोकेसी, क्लाइंट काउंसलिंग इज वन एंड सेम। आप एडवोकेसी किसके साथ करो, पहले तो हमें समझना है। इट इज नॉट ऑलवेज बिफोर द जज, इट इज फर्स्ट बिफोर द क्लाइंट सोल्यूशन और विद द पार्टनर और विद एनी ऑफ द सीनियर। एडवोकेसी इज जस्ट अ टर्म कि आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर एडवोकेसी नहीं आती, कोर्ट के अंदर आपके सबमिशंस आते। एडवोकेसी उस पॉइंट से स्टार्ट होती है जब से आपके क्लाइंट ने आपके ऑफिस में एंटर किया होगा। पहले तो ये समझते हैं। फ्रॉम दैट मोमेंट ओनली आपकी कन्विंसिंग पावर्स कितनी है, आप अपने क्लाइंट को कितना समझा सकते हो, आप उससे पैसे कैसे ले सकते हो, दिस इज कॉल्ड एडवोकेसी। वो अगर आपके सामने कह दे कि ठीक है मैं एक सेकंड ओपिनियन लूंगा तो फिर क्या रहेगा? आपके अंदर इतनी कन्विंसिंग पावर्स होनी चाहिए कि आप उसको रिटेन कर। पहला। दूसरा,
4th ईयर के अंदर अगर अभी हम हैं तो अभी से क्या चीज़ों के अंदर हम आगे आए कि ये स्किल्स ब्रश अप होगा, और अगर अभी डेवलप नहीं हुई तो हम डेवलप करते हैं। सबसे पहले इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें। आई थिंक दिस इज द टाइम जब हम प्योरली अपने BA या BBA जो था वो 3rd ईयर का छूट चुका, राइट? नाउ इट इज प्योर अबाउट लॉ एंड लॉ, करेक्ट? तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हम अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम आगे आके किसी ना किसी लीगल इवेंट में पार्ट ले रहे हैं, कितने पेपर्स हमने पब्लिश कराए हैं। क्वाइट अ टाइम्स जब आप अपनी कहीं CV देते हो तो आप नहीं बोलते, आपकी CV आपके लिए बोलती है। दिस इज वेरी मच करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने जितना इन 5 साल में काम किया है, स्पेशली फ्रॉम 2nd ईयर ऑनवर्ड्स, वो आपकी CV बताए। ग्रेजुएट होने के बाद, पास आउट होने के बाद हर कोई कहता है कि एक्सपीरियंस कहाँ से मिला। ग्रेजुएट होने के बाद आपका एक्सपीरियंस आपकी CV बताता है। So basically from this year onwards you should try to grab maximum number of opportunities, be it article writing, be it research papers, journals में कुछ लेके आना, book writing के अंदर पार्ट लेना, और any of the mediation, arbitration और mooting, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है जो आपको एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करती है कि आप अपना स्किल सेट प्रेजेंट करें। अदर देन दैट कहाँ पे आज के टाइम पे एडवोकेसी खराब हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल खराब हो रही है, हर कोई डिपेंडेंट है AI के ऊपर। सी दिस इज द हार्श रियलिटी कि हर एक को पता है कि आज का दिया हुआ काम 10 मिनट के बाद इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारे हाथ में AI है। सो मेरे एक्सपीरियंस से ये ब्लंडर है, बिकॉज आई हैव पर्सनली विटनेस्ड कि एक इंटेलिजेंस जो नाम से ही आर्टिफिशियल है वो आपको कभी भी करेक्ट इनपुट नहीं देगी। यस, वो आपकी लैंग्वेज ठीक कर सकती है, इंटेंट ठीक कर सकती है, बट लॉयर्स और डॉक्टर्स के लिए AI नहीं है। दिस इज माय टेक। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन का सब सेक्शन दे देता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड हम ब्लाइंडली उसको प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे आपकी इमेज टार्निश होती है। पहला तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है। रिसर्च वर्क प्योरली होता है या तो इंटरनेट सोर्सेज से, ई-जर्नल से, जर्नल से, लाइब्रेरीज में बैठ के, हार्ड कॉपीज के थ्रू, बेयर एक्ट्स के। एक हैबिट जो अभी से रखनी है, आने वाले 2 साल के लिए मेजॉरिटी ऑफ बेयर एक्ट्स अपने परचेज। बेयर एक्ट्स को परचेज करने का पॉइंट ये है कि जितनी आप ई-कॉपीज से पढ़ते हैं वो रिटेन नहीं करते, और जब वो रिटेन नहीं करता, आप बोल नहीं पाते तो आप पीछे रहते हैं। एक ये चीज़ है। मेरे पास आज भी मेरे सारे बेयर एक्ट्स हैं और बिल्कुल रंग रखे हैं मैंने। कई बार मुझे भी पढ़ने में डिफिकल्टी हो जाती है, मैंने पेन से ऊपर क्या लिख दिया वो वर्ड छुप जाता है। अच्छी चीज़ है कि हम अपने iPad, लैपटॉप, टैबलेट्स कैरी करें, उसमें अंडरलाइन मार्क करें, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूजफुल नहीं है क्योंकि आप उसको रिटेन नहीं कर सकते। अपनी हार्ड कॉपीज अपने साथ कैरी करें। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स क्यों मैटर करती हैं आपकी स्किल सेट को डेवलप करने में, कम्युनिकेशन स्किल्स को? क्योंकि आपको उधर मिलता है बेसिक सी चीज़ें जो हर एक को पता है, दैट इज एक्सपोजर। टारगेट कैसे करना है, मैक्सिमम जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले ब्लाइंडली उस पर अप्लाई करते जाओ, चाहे वो आपके लिए बनी हो या ना बनी। कई बार ऐसा होता है उनको लोग नहीं मिलते, वो डेफिनेटली आपको पिच इन कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं। दो ही ऑप्शन होगा। क्या थोड़ा सा हसल जरूर होगा, इवनिंग में दिक्कत जरूर आएगी, मैनेज करने में स्ट्रेस जरूर क्रिएट होगा, बट बेनिफिशियल होगा। इसी इंस्टीट्यूट से अभी तक मिनिमम 15 से 18 लोग वैसा इंटर्नशिप्स कर चुके हैं। जहाँ जहाँ मैं गया, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, आई एम अ डायनामिक पर्सन, मैं एक जगह नहीं रुकता। सिंस डे 1 मैंने 5 से 6 जगह स्विच कर दिया है, और जहाँ गया यहाँ से इंटर्न्स अपने साथ लेके गए, और वो अभी भी इस इंस्टीट्यूट में है, पास आउट कुछ हो गए हैं, कई लोग प्लेस भी हो गए वहीं जहाँ उनकी इंटर्नशिप लगे। क्यों? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन मेरे साथ अच्छा था। आई नो देम वेरी वेल कि मैं अगर उनको रिकमेंड कर रहा हूँ या अगर मैं उनको बुला रहा हूँ तो वो मेरे लिए उतना ही डेडिकेटली काम करेंगे। जब हम लोगों ने कोर्ट रूम जो आपकी लॉ सोसाइटी हमने इस्टेब्लिश करी, जस्टिशिया स्टार्ट किया, वी वर द वंस जिन्होंने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया, ये नाम दिया। एट दैट टाइम ऑल्सो, क्योंकि देखो जब तक कोई चीज़ बनती नहीं है उसको फाउंडेशन से बनाना पड़ता है। हर एक को ट्रेन किया कि कैसे बोलना है कोविड टाइम के अंदर, कैसे बात करनी है, हमें भी नहीं आता था। आई वॉज अमंग्स द वन जो पहले 3 साल चुप था क्लास में, किसी को पता ही नहीं, और उसके बाद ऐसे 6 साल लगे हैं कि अब चुप होने का नाम ही नहीं लेता। सो दिस इज व्हाट
जो रिक्वायर्ड है हर एक को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना। क्लासरूम स्टडी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट प्रैक्टिकल नॉलेज रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोग जितना मूव्स के अंदर पार्ट लोगे, जितना आर्बिट्रेशन सीखोगे, एज पर द मार्केट ट्रेंड्स, वो आगे तक हेल्पफुल है। मैक्सिमम पे इस टाइम कोई अगर ग्रैब कर सकता है तो वो आर्बिट्रेशन साइड कर सकता है, कमर्शियल साइड कर सकता है, या मिनिस्ट्री साइड कर सकता है। ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग की कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द हाइट वाले हिसाब है, गेट टू गेट की कोई लिमिट नहीं होती अर्निंग की। बट अगर आप एक जॉब की साइड देख रहे हैं तो ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें आज से काम आपको करना है। राइट योर ओन थिंग्स, गेट इट पब्लिश्ड, कॉन्टैक्ट योर कॉलेज अथॉरिटीज, डू व्हाटएवर, बट थोड़ा सा आगे आने की जरूरत है। जितना पीछे बैठोगे उतना पीछे होते हो। लॉ की डिग्री हर एक को मिलेगी, ये चीज़ तो पक्की है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में होता है कि किसी की डिग्री रह जाए, वो ड्रॉप आउट हो जाए, पीछे छूट जाए। हमारे भी बैच में जितने हैं सब लोग डिग्री लेके ही निकले, कोई ऐसा नहीं था जिसको डिग्री ना मिले। बट मैटर क्या कर रहा है, कितने लोग कोर्ट के अंदर दिखते हैं जो आपसे हाथ मिला के जाते हैं और फिर जानते हैं ये मेरा बैचमेंट, और 4 ऐसे होते हैं जो मुंह उधर करके चले जाते हैं कि भाई हमसे कुछ पूछ लेगा तो हम क्या बोलेंगे। ऐसे भी लोग हैं। तो वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स एज। प्लस अब बात आएगी कि स्किल सेट को जो हम ब्रश अप कर रहे हैं तो उसके अंदर इश्यूज क्या है। पहला इशू ये आ रहा है कि हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, हम कहाँ पे जाके अप्लाई करें, हम कैसे समझें। सो द बेस्ट मेथड इज, जब हम प्रैक्टिकल स्किल्स और एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की बात करते हैं, कहीं पे कुछ पब्लिश नहीं। इफ अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे एक सर्टेन मिनिस्ट्री में काम करना है, तो दिस इज माय ड्यूटी कि मैं उसकी वेबसाइट को रेगुलर चेक करूं, उसकी ऑफिशियल आईडीज पे अपना सीवी हर 2 से 3 महीने के अंदर 2-3 बार भेजता रहूं। इंटर्नशिप्स पोर्टल पे मेरा ये ड्यूटी रहेगी कि मैं कॉलेज पे डिपेंडेंट ना रहूं और अप्लाई करूं। अदर देन दैट, नियरेस्ट जो भी जिसके कॉन्टैक्ट्स में एडवोकेट हों उनके पास जाके इंटर्नशिप्स करें। तो स्टाइपेंड एक इशू हो सकता है, बट अगर हम मॉनेटरी एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे फिर हम अपॉर्चुनिटी को या तो छोड़े या मनी गेन्स की तरफ अट्रैक्ट। दिस इज ओनली वन थिंग अवेलेबल एट द मोमेंट। सो एक इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें एक चीज़ पे और मेजर कंसर्न शो करना है कि जब भी हम कोई चीज़ के ऊपर काम करें, हम उसको सोसाइटी में कैसे पोर्ट्रेट करें। सी, आपने कुछ काम किया लेकिन उसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं, तो क्रिएट योर ओन प्लेटफॉर्म्स। टाइम इज डायनामिक, हर कोई अपना पेज चला रहा है, हर एक के पास अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पेजेस हैं, जगह जगह है। मे बी आई एम नॉट वेरी मच अवेयर, बट दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करो। यू नेवर नो कौन सी पोस्ट कहाँ पे कितनी रीच आपको लेके जाए, बट ओरिजिनल होना चाहिए। जब हम लोग बात करते हैं 5th ईयर में कि हम लोग थीसिस लिखेंगे, डिसर्टेशन करेंगे, आईपी के अंदर करिकुलम का एक मेजर पार्ट है थीसिस राइटिंग। 10th सेमेस्टर में अलॉन्ग विद योर इंटर्नशिप थीसिस होता है। तो जब मैंने लिखी थी तो ऑब्वियसली कोई खुद से इतना नहीं कर सकता, इंटरनेट सोर्स यूज़ किया, आर्ट फाइल्स यूज़ करी, अपनी नॉलेज लगाई, कंबाइन किया। तब तक एआई बहुत स्टार्टिंग में था, एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि उसमें रिजल्ट्स कैसे जनरेट होते हैं और हम कितना यूज़ कर सकते हैं। बट अब टेक्नोलॉजी ऐसी है, आई एम माई सेल्फ यूजिंग सच टूल्स जो ट्रैक कर सकते हैं कि कितना किससे जनरेट किया गया। ऑथेंटिसिटी मैटर्स। लॉ के अंदर अगर आप सब ये सोच के चलेंगे कि हम कहीं से भी कुछ भी उठा लें तो सामने वाला 2 स्टेप आगे रहेगा। दे कैन ईजिली ट्रैक कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से कॉपी किया, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्श होते हैं। दिस इज द रियलिटी। ऐसा नहीं कि आपको कोई निकाल देगा, हार्श आप ही के लिए होंगे, कल को जब उसको पता चल जाएगा तो क्या इमेज है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जब भी आप रिसर्च करो, राइटिंग में करो, ड्राफ्ट करो, एज मच एज पॉसिबल उसको प्लेस करो, ट्राई करो, को ऑथर करो। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन आई कैन गिव। इसके बाद बात आ जाती है मेन कि जब हम कॉलेज के अंदर हैं, अब हम स्टडीज़ को कैसे मैनेज करें। सी, स्टडी का मैनेज करने का द बेस्ट पॉसिबल मेथड अकॉर्डिंग टू मी इसके दिन के 3 घंटे मोर देन सफिशिएंट फॉर लो। 3 घंटे से ज़्यादा ना रिटेन हो पाता है, ना ही आप रिटेन कर सकते हो। और आज के टाइम पे जिस टाइप के केसेस से हम डील करते हैं, जिस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है, वो कुछ ऐसे लॉज एंड स्टैट्यूट्स हैं जो आपके करिकुलम में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉक्सो के केसेस अलार्मिंग रेट में, जुवेनाइल्स के केसेस अलार्मिंग रेट में, मोटर एक्ट के केसेस अलार्मिंग रेट में,
ये वो बहुत छोटे छोटे पोल्यूशन, योर एनवायरमेंट एंड एवरी सच रिलेटेड थिंग इज एट द अलार्मिंग रेट, ये आपको कोई नहीं पढ़ा और ना ही ये तो करिकुलम में बहुत ज़्यादा आता है। तो क्यों ना इस साइड सोचा जाए, इस पर वर्क किया जाए, कुछ डेवलप किया जाए, नहीं भी किया जाए तो बना के रखा जाए। यू नेवर नो कौन सी चीज़ कहाँ पे आ सकती है। दिस इज द राइट टाइम जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेपर पब्लिश करने की अपॉर्चुनिटीज आती हैं हमारे पास एंड लोग ट्रैवल करते हैं। रिसेंटली 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं, लोग गए, उनके पेपर्स पब्लिश हुए और जीत। इन रिटर्न उनको क्या मिला? इन रिटर्न उनको उनकी सीडी में डालने के लिए एक चीज़ वेटेज मिलती है। सी जब आप कहीं पे अप्लाई करते हैं, खासकर एक फ्रेशर जैसे मैं जब अप्लाई करता था, तो वहाँ पे स्कोरिंग चार्ट होता है, एक कार्ड होता है उनके पास, उसके अंदर वो एक्सपीरियंस में मार्क्स नहीं देते, उसमें वो मार्क्स देते हैं पब्लिश्ड फाइल, ओके, इंटर्नशिप स्कोर। क्योंकि फ्रेशर का जो स्कोर कार्ड है वो सीवी से डेवलप इन्हीं पॉइंट्स पर, आपने कितने मूव कोर्स में पार्ट लिया, आपने कितने डिबेट्स में पार्ट लिया। ये बहुत ही ऐसा साउंड करेगा या तो हम रोज करते नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क तब पड़ेगा जब आपके साथ में उस चीज को लेके चला। यू हैव टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन राइट फ्रॉम द मोमेंट ओनली, बिना किसी कंफ्लिक्ट में आए। क्वेश्चंस क्वेश्चंस है और आगे। अब बात एंड की साइड पे जब हम आएंगे, इस चीज़ को देखना है कि जब हम 5th ईयर की तरफ जाएंगे धीरे धीरे, तब क्या होगा? तब हमारी मेन फोकस आ जाएगा सारा का सारा प्रैक्टिकल लर्निंग, किन जगहों को हमें अप्रोच करना है। सी अभी दिस इज द राइट टाइम कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की साइड मूव ऑन करें धीरे 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 धीरे। बाय एंड ऑफ 4th ईयर, बाय स्टार्ट ऑफ 5th ईयर, यू शुड ट्राई टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज विद हाई कोर्ट्स। कोई अगर बाहर से है तो अपने वेकेशन टाइम में वहाँ के हाई कोर्ट को अप्रोच करे, नहीं है तो दिल्ली हाई कोर्ट इज द बेस्ट प्लेस। गेट योरसेल्फ एनरोल्ड विद वेरियस मेंबरशिप्स जो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मीडिएशन हाउसेज आर देयर, आर्बिट्रेशन हाउसेज आर देयर, PSUs आर देयर। ट्राई टू पिच इन ट्रेनिंग मैनेजमेंट कोर्सेज। ये 1-1 साल का होता है, ये स्किल इंडिया के थ्रू मिलता है। एक टाइम पे मैंने भी किया हुआ है एंड डायरेक्टली आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है 1 ईयर के लिए कि आप किसी भी PSU हाउस में काम कर सकते हैं। तो स्किल इंडिया के अंदर ग्रेजुएट होते ही यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो देयर इज नो नीड ऑफ एनी रेफरेंस और समथिंग लाइक दैट। सो प्लीज ट्राई टू ग्रैब सच अपॉर्चुनिटीज। धीरे धीरे हमें इस चीज़ को डेवलप करना है। ऑलराइट, दिस इज व्हाट आई कैन शेयर विद माय एक्सपीरियंस हियर एंड द मंत्रा इज ओनली दैट अपनी बात को रखने के लिए आवाज़ ऊंची नहीं करनी, पहले लीगल बैकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। शांति से सोच के, अच्छे से रिसर्च करके फिर जब चीज़ को प्रेजेंट करोगे, कोई उसको गलत नहीं करेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। I request Mr. Raghav sir to kindly present a memento as a mark of our gratitude and respect.